आज हम मौजूद हैं मारवा स्टूडियोज़ में, जहां मनाया जा रहा है द ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 10। व्हेन आई से 10, इसका मतलब ये है कि ये फेस्टिवल 10 सालों से मनाया जा रहा है, जिसका कई बार पार्ट बनी है मैम डॉक्टर पल्लवी प्रकाश। तो हम डॉक्टर पल्लवी प्रकाश से ये जानना चाहते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे टू बी हियर सेलिब्रेटिंग विद अस द लिटरेरी फेस्टिवल, द ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल? One word, fantabulous, fantastic, energetic, and catalyzed. So this exactly explains the euphoria which I'm feeling right now. Fantastic. It's such a pleasure to be here always, and I always get recharged whenever I come here. So that's exactly answering your question. As we all know that you are an international personality, you speak for the women rights, you're an activist. So I want to know that being a woman, you have been into the industry also. What problems did you face? Like बहुत बार ऐसा होता है कि एक तरीके से टैबू लिया जाता है कि हर जगह औरतें अच्छी नहीं लगती, be it the industry, be it the television or writing. तो ये एक कहा जाता है कि ये काम आदमियों पे ज़्यादा सूट करते हैं. It's not for girls, it's not for the women. So what's your perception on it? Well, I would say that we cannot categorize any work based on gender, right? That is the drawing room talk which we have, right? Why I'm using the word drawing room talk? Because India is not only, or in fact the world is not only comprised of people who are residing in metros or all big cities, but we must remember कि 90% of the population is residing in B towns and the rural area, right? So when we actually want to speak about gender equality or picking up a profession which is not based on the bias of gender, then we need to sensitize people more. तो सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जेंडर बेस्ड होता नहीं है, हम उसे जेंडर बेस्ड बनाते हैं. जो परसेप्शन है लोगों का वो उसे जेंडर बेस्ड बनाता है. तो सबसे पहले ज़रूरत है कि द चेंज ऑफ परसेप्शन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, राइट? एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर पीपल लाइक अस स्टेप इन. As an author, as an international motivational speaker, and as a filmmaker, I am highly honored and I am full of gratitude to the Almighty that He has given me little energy to be that drop in the ocean, the drop which might or who is constantly trying to bring that change. तो answering your question, I would say कि बिल्कुल सही बात है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे, कई सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ अभी भी women they are like taboo. Okay, they cannot be good filmmakers or probably they cannot be good speakers. But I would totally break this ice and say that no, any work or profession is never gender based. If you have to actually change the mindset of the people, you have to set in, you have to step in that profession, and that's the reason why I'm here. तो challenges आए बिल्कुल, पर यही मेरी reason थी to change the mindset for the coming generations. क्योंकि हमारी generation में या पीछे की generation में जो हुआ, that is okay. But who would take this stake of changing the people who are coming in? राइट आप जैसे यूथ हैं या और जो जनरेशन हमारे जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, तो हमें एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना पड़ेगा. और ये कैसे ब्रेक होगा? कुछ ऐसी फिल्मों से, कुछ ऐसी किताबों से, कुछ ऐसे सेशन से जहाँ की हम सेंसिटाइज कर सकें एक्चुअली लोगों को कि नो, women are equal, they are in fact better in some fields, so we just need to give them a chance. So if I can be that person, then you can also be. So I think that's the zest of the ideology that no, women can reach the stars actually. Okay, so the festival we are celebrating is on literature and the importance of literature. और आपका educational background literature से ताल्लुकात तो कभी नहीं रखा इतना. आप B.Tech करा है आपने and you were a student of computer science. Yes. So what made you so connected to literature जो आपने इसमें शुरुआत करी अपनी?
एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? मुझे जानना है क्योंकि मेरे लिए भी एक कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड था और मैं अब एकदम से BJMC की स्टूडेंट हूँ, तो एक एक्सपीरियंस होता है जो आपसे मिलेगा तो इनसाइट्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी इंटरव्यू शायद नहीं होगी आज तक जहां मुझसे ये सवाल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि व्हेन यू have learned something else and when you pick up your profession into a totally different realm, right? So I would say कि मैं जो बहुत ही सटीक इसका जवाब देना चाहूँगी कि कई बार आपको अपनी कॉलिंग का पता बाद में चलता है, right? So sometimes when you are young, you're very young, you run in that race that probably okay ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, UPSC करना है। मैंने भी की, बीटेक की, जॉब किया एक जो टॉप हमारी MNCs में है, बट समवेयर डाउन द लाइन आई वॉज नॉट हैप्पी। वो कहते हैं ना सोल हैप्पीनेस, I was not happy doing technical stuff. I was not happy just being an engineer. So what was my calling? So I realized at that point in time कि हर एक इंसान को अपनी डिग्री से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि स्किल्स आपकी क्या है। और एग्जैक्टली यही चीज़ जो हमने 10 या 15 साल पहले रियलाइज़ किया वो अभी इनकलकेट हो रही है आज के करिकुलम में। इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्किल एजुकेशन, राइट? दे आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स स्किल बेस्ड जॉब्स, या जो हमारी प्राइमरी इनहेरिटेंस वो कहते हैं कि जो टैलेंट है उससे मैच हो रही है। सो स्किल बेस्ड जॉब्स और स्किल बेस्ड जर्नी इज़ ऑलवेज हाईली ग्रेटिफाइंग। वो आपको इतना संतोष देगी जिससे आपके करोड़ों रुपए शायद किसी बहुत ही बड़े MNC में शायद मैं और बहुत ज़्यादा कमा रही होती, बट आज मैं कहना चाहूँगी जो सेटिस्फैक्शन और रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है एज अ फिल्म मेकर, एज एन ऑथर, एज अ स्पीकर, सो I would go 10 times and take the same decision again and again. So the answer is the focus should be more on your skills rather than your degree. And if you are wise enough to match the skills, जो कि मैं हमेशा अब सेशंस में सिखा रही हूँ, पिछले 15 साल से कई सेशंस मेरे मारवा में भी हुए हैं, कि how you recognize what is your talent and then you nurture your skills accordingly to earn money. वो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका होता है। तो ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि स्किल बेस्ड हमेशा होनी चाहिए। वेल, मैम का स्किल सेट तो हमने आज देख ही लिया। शी हैज़ जस्ट लॉन्च्ड हर बुक इन द सेमिनार, दैट्स लव बियॉन्ड फॉरएवर, राइट? I would like to say something on it. Yeah, sure. I would also like to share with my audience that there are 2 books which are coming up. One is Life Towards Positivity. Okay. This is slotted to release on 4th of October. जितने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब जो ये कह लो आपकी 18-20 साल की जो जर्नी है मेरी एज अ मोटिवेशनल गुरु लोग कहते हैं या स्पीकर कहते हैं लोग, तो उसमें जो भी मेरी नॉलेज ग्लोबली जो मैंने सिखाया बच्चों को, या कहोगे कि कई सारे प्रोफेशनल्स को भी, वो सारा जेस्ट उसमें डाल दिया है। और इसके चैप्टर्स भी ऐसे हैं जो बिल्कुल यू कैन रिलेट विद मॉडर्न डे लाइफ, बिकॉज आज के ज़माने में सी दी थिंग्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, नोबडी इज़ हैप्पी। सो वो खुशी कहाँ चली गई? ये सब कुछ तो है हमारे पास, खुशी क्यों नहीं है? तो उस खुशी को वापस कैसे पाना है, और सिर्फ पाना है एक ब्रॉड टर्म मैंने नहीं बोला है, स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ करनी है, that is all penned in their book. So that's a beautiful book. And the other book is, since I write fiction, non-fiction both, I'm a very, you can say, emotional person at heart. So this book which we have just launched, posted today, is Love Beyond Forever. That's a fiction, and I'm sure कि youth इससे बहुत connect होंगे. This is a story, it's a love story of souls basically, journey of souls during many lifetimes. And how, it said कि कहीं ना कहीं जो प्रेम या प्यार होती है वो आत्मा से कनेक्टेड रहती है, जो कि हमारे यूथ जो युवा है वो भूल गए हैं। तो इसी चीज़ को दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए, रीअफर्म करने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई और एक और फिक्शन लिख डाली, दैट इज़ लव बियॉन्ड फॉरएवर, विच इज़ स्लॉटेड फॉर रिलीज इन नवंबर विथ द राही पब्लिशर्स। नाउ दिस वुड बी माई 6th बुक एक्चुअली। तो राइटिंग का सफ़र बिल्कुल 18-20 साल से चल रहा है। आर्टिकल्स एज अ कॉलमनिस्ट एंड आर्टिकल्स ऑल दी लीडिंग पेपर,
but these are 2 upcoming books which are going to be released. ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ. ऐसे ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए AFT 24/7 नोएडा. थैंक यू. Thank you so much.